السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ آج ہماری ہے دوسری کلاس، تو چلیے چلتے ہیں اپنی دوسری کلاس کی طرف جو کہ ہے نماز۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شأنك هو الأبتر۔ اچھے بچوں کو تو غصہ آتا ہی نہیں، لیکن جن کو آتا ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کرنے سے منع کیا ہے۔ آئیے وہ بات بتاتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کہی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب ولك الجنہ المؤمن لا يغضب۔ میرے بچوں، اللہ کے جو خوبصورت نام ہیں اس کو انہی ناموں سے پکارو۔ ہمارے رب کے تو بہت سارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ان ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اسماء الحسنى هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعصي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم۔ پیارے بچوں، پچھلی کلاس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کا ادب سیکھا تھا، اور اس مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سیکھیں گے۔ بچوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہم پر واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں، ہر کام سنت یعنی جیسے اللہ کے نبی نے کیا ویسے ہی کریں۔ آپ نے جو حکم دیا ہم سب ان باتوں پر عمل کریں، جن جن باتوں سے آپ نے روکا ان سے باز رہیں۔ اور بچوں، جب بھی آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں، اور تو اور درود ابراہیمی بھی یاد کر لیں۔ چلیں اب کچھ کھانے پینے کی بات کر لیں۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے پین کیک کی ریسیپی۔ پین کیک کے لیے 1 انڈا، 1 کپ میدا، 1 کپ چینی، آدھا چمچ بیکنگ پاؤڈر، آدھا کپ دودھ، آدھا کپ تیل، سب کچھ ملا کر اچھی طرح پھینٹ لیں اور مکسچر بنا لیں۔
सैंडविच मेकर में ऑयल लगा दें और उसमें मिक्सचर डाल दें। इस मिक्सचर से 10 से 15 केक आराम से बन जाएंगे। अगर सैंडविच मेकर ना हो तो किसी बड़े की मदद से छोटी सी रोटी की शक्ल में तवे पर भी बनाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, आज हम आपको सुनाएंगे पिछली दफा की तरह एक नई और बड़ी दिलचस्प कहानी। तो उम्मीद है आपने अपने सब होमवर्क कर लिए होंगे। तो चलिए कहानी सुनना शुरू करते हैं। राफी स्कूल टाइम में स्नैक टाइम में अपना लंच खाने और ठंडा पानी पीने में मसरूफ था, तो अचानक उसकी नज़र अपने दोस्त असद पे पड़ी, जो बहुत उदास बैठा था। राफी के मालूम करने पर उसने बताया कि वो अपनी पानी की बोतल तो घर भूल आया है और गर्मी की वजह से बहुत प्यास लग रही है। राफी ने सुना और वहां से चला गया। वक्फे के बाद राफी कुछ बेचैन सा था। घर जाकर भी उसे कोई चीज़ परेशान कर रही थी। राफी के दादा जान से बहुत दोस्ती थी राफी की। वो स्कूल की सारी बातें दादा जान को बताता था। आज जब राफी ने बताया कि असद की प्यास का सुन के वो खामोशी से चला आया, ये कह के राफी कुछ देर के लिए खामोश हो गया। दादा जान समझ गए कि राफी बेचैन है, मदद करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। दादा जान ने राफी से कहा, चलो आज मैं तुम्हें बहुत ही सखी इंसान की जिंदगी के हालात बताऊंगा। जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो मालूम हुआ कि मदीना शहर में पीने का साफ और मीठा पानी नहीं, उस पूरे शहर में मीठे पानी का सिर्फ एक कुआं था, जिसका नाम था बेरे रूमा, जिसका मालिक एक यहूदी था। जो भी इस कुएं से पानी लेने की ख्वाहिश करता, यहूदी पैसे लेके उसे पानी दे देता था। प्यारे बच्चों, मुहाजिरीन के पास तो उस टाइम रुपया पैसा कहाँ, वो तो अपना तमाम माल जायदाद और सामान अल्लाह की रजा की खातिर मक्का में छोड़ आए और हिजरत करके मदीने आ गए। सिर्फ और सिर्फ ईमान की दौलत सीने से लगाए वो मदीने पहुंचे थे। मुसलमान जब पानी के मामले में शदीद तकलीफ से दो चार हो गए तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जो शख्स इस कुएं को खरीद के मुसलमानों के लिए पानी आम करेगा उसके लिए जन्नत है। जन्नत की बशारत पाके एक सहाबी चुपके से उठे और उस यहूदी के पास जा पहुंचे। यहूदी ना सिर्फ कंजूस था बल्कि बहुत बुरी फितरत का भी मालिक था। सहाबी ने यहूदी से कहा, मैं ये कुआं खरीदना चाहता हूँ। यहूदी ने हैरत से उस नौजवान को देखा। वो खूबसूरत, पाकीज़ा और बावकार शख्सियत का मालिक नजर आया था। यकीनन वो मदीने का वासी नहीं था। यहूदी ने इस नौजवान से कहा कि ये कुआं बराए फरोख्त नहीं है। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने वो कुआं 8000 दिरहम में खरीद के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। वक्फ करने से मुराद ये है कि वहाँ पर सब लोग पानी पी सकते थे, मुसलमान भी और गैर मुसलमान भी। तो प्यारे बच्चों, ये शख्सियत जिन्होंने सखावत का बेमिसाल मुजाहिरा किया और गनी और दरिया दिल होने का सबूत दिया, उस अजीम सहाबी का नाम मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आज हमारी क्लास इतनी ही थी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।